Dear students, welcome again in maths lesson. In previous lesson, we have seen the values of these six trigonometric ratios at 0 degree, at 30 degree, and at 60 degree. In previous lesson, we have filled this column, and this column. Today we will see what are the values of these six trigonometric ratios at 45 degree and 90 degree. So let us start today's lesson. The geometrical representation of these six trigonometric ratios at 45 degree and 90 degree. हम इनका geometrical representation देखेंगे कि 45 degree पर what are the values of these six trigonometric ratios and what are the values of these six trigonometric ratios at 90 degree. Let's start. Draw a simple right angle triangle and put here A. This is our respected angle. This is angle B, which has 90 degree, and this is C. This is our base, and this is our perpendicular, and this is hypotenuse. Okay. For 45 degree, if we consider the angle 45 degree, we have to make the angle here 45 degree. यहाँ पर हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा. If we make here 45 degree and this angle is 90 degree, then this angle will be कितना हो जाएगा ये? When sum of three angles is 180 degree and this angle is 90 degree, this angle is 45 degree. 90 and 45, 135, 135. Subtract 135 by 180, you will get again 45 degree. It means by default this angle will be 45 degree. It means this is a triangle, a right angle triangle, which has two angles equal. Two angles equal again. It means if we consider the type of this triangle, this has two properties. This is right angle as well as isosceles. Yes, isosceles triangle. An isosceles triangle which has two angles equal. Two angles equal means side opposite to equal angles are also equal. Side opposite to equal angles are also equal. साइड इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइड सारी हैं, ये इक्वल एंगल है और ये भी इक्वल एंगल है. इसके अपोजिट कौन सी साइड? ये, और इसके अपोजिट ये. इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ठीक है, तो हम इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे 45 डिग्री का. अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों साइड इसकी इक्वल हो गई, x और ये भी x. अज्यूम कर रहा हूं मैं लेंथ को. और हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, तो हाइपोटेनियस फाइंड करने का फॉर्मूला वही जानते ही हैं आप. हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गिव्स 2x square, hypotenuse square, and hypotenuse equals to under root 2x square, and under root 2x square gives which value? Yes, under root 2 in the cage, under root sign, and
x will be free. x फ्री हो जाएगा, x स्क्वायर का अंडर रूट x होगा. It means this value is under root 2x. This is the value of hypotenuse. याद रखना है, ध्यान रखना है, x आउटसाइड में है, इस अंडर रूट के साइन में कंसीडर नहीं है, आउटसाइड है. पूरा ध्यान रखना है इसको. Yes. Now find the value of sine. Yes, this is base, this is perpendicular, this is hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse. Pandit Badri Prasad Harar bole formula. Perpendicular is x and hypotenuse is under root 2x. X cancel x. Here numerator is 1 upon under root 2. Your value will be 1 upon under root 2. What is the value of cos A? Yes, cos A. Base upon hypotenuse. What is the base? Base is x. And hypotenuse under root 2x. X cancel. Remaining 1 in the numerator. 1 upon under root 2. Same values. What is the value of tan? Tan gives perpendicular upon base. Pandit Badri Prasad Harar bole. Perpendicular x upon base. Base is, yes, same. Base is same. Perpendicular and base are same because triangle is isosceles. 1 upon 1 gives 1. You can put here 1. Now value of cot. Cot is reciprocal of tan. This is 1 upon 1. 1 up reciprocal or 1 upon 1 is also 1. So you can put here 1 upon 1 or freely 1. What is the value of sec? Sec inverse of cos A. Inverse of cos A means under root 2 upon 1. Under root 2 upon 1 means under root 2. And this is the value of cosec A. Cosec A is the inverse value of sine. Sine की inverse value under root 2. Under root 2 upon 1 gives under root 2. This is the geometrical representation for 45 degree. ये 45 डिग्री का कॉलम कल हमने नहीं भरा था, आज भरा है. ठीक है. 45 डिग्री के साथ मैं अब 90 डिग्री का भी आपको करवा देता हूं. 90 डिग्री. फिर हम इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और इसका सेकंड मेथड भी देख लेंगे कि इसको कैसे हमें माइंड में रखना है, इस पूरी टेबल को. बिल्कुल सिंपल है, इंटरकनेक्टिविटी है सब में. दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, आई एम गोइंग फॉर 90 डिग्री. 90 डिग्री के लिए चल रहा हूं मैं. दिस इज आवर डिफॉल्ट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज एंगल ए, बी एंड सी. ओके, दिस इज आवर acute angle, respected angle, working angle. This is our base, this is our perpendicular, and this is hypotenuse. Yes. We consider this angle. In this case, we made this angle 45 degree. If we consider 90 degree, we have to made here 90 degree. This is our understanding point. ये समझने वाला पॉइंट है कि हम जो भी एंगल ले रहे हैं वो यहां पर बना रहे हैं. हमने 0 डिग्री देखा था तो यहीं बनाया था, 30 डिग्री वाला कंसीडर किया था तो यहीं बनाया था, 45 भी यहीं बनाया है, 60 डिग्री भी यहीं बनाया था. उसकी बात दूसरी थी, 60 और 30 एक साथ आ गए थे हमारे.
और 90 डिग्री को अगर कंसीडर कर रहे हैं, 90 डिग्री की वैल्यूज आप फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एंगल ए को आपको 90 डिग्री पर इमेजिन करना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री कैसे बनता है, मैं एच थोड़ी देर यहां से रब कर रहा हूं। अगर मैं इस एंगल को बड़ा करता जाता हूं, क्यों एक्यूट है, एक्यूट को मेरे को क्या करना है, यहां तक लाना है, इसको 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक लाना है, ठीक है। तो 90 डिग्री डायरेक्ट नहीं, धीरे धीरे करके ला रहा हूं मैं आपके सामने। देखो लॉजिकल मेथड है बिल्कुल। हाइट वही रखनी है, हाइट इस ट्रायंगल की हाइट है ना, इतनी ही रखनी है, ये हाइट है, ये हाइट बिल्कुल सिंपल है, लॉजिकल है, लॉजिक समझना आप। ये मैं 90 डिग्री पर ले आ रहा हूं, धीरे धीरे इसको बड़ा कर रहा हूं। देखो ये हाइपोटेनियस यहां आया, तो ये वाली लाइन कहां आ जाएगी, हाइपोटेनियस वहां चला गया तो ये लाइन यहीं आ जाएगी, ठीक है। हाइपोटेनियस यहां चला गया तो ये लाइन कहां आ जाएगी, ये लाइन यहां आ जाएगी। परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर पहले यहां है, अब इतना सड़क के यहां आ गया, परपेंडिकुलर यहां आ गया। क्या फर्क पड़ रहा है, हमारा बेस पहले यहां से यहां तक था, अब बेस यहां पर हो गया, अब बेस यहां पर आ गया, बेस कम होता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है, ये एंगल बढ़ता जा रहा है। देखो सेकंड केस में ये एंगल हो गया था, थर्ड केस में यहां। ऐसे धीरे धीरे लॉजिक अगर चलते हैं, लॉजिक लेते हुए, तो ये एंगल नेक्स्ट स्टेप में यहां आ जाएगा और बड़ा हो गया, देखो एंगल और बड़ा हो गया। तो धीरे धीरे इस एंगल को हम क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा जो बेस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हमारा बेस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, बेस। यहां पर जब लास्ट में हम पहुंचेंगे, यहां पर पहुंचेंगे, तो क्या सिचुएशन होगी, ये सी वाला पॉइंट यहां आ जाएगा। देखो ये सी पॉइंट यहां आ जाएगा लास्ट में, सी पॉइंट लास्ट में यहां आ जाएगा, और बेस कहां आ जाएगा, बेस है ही नहीं, बेस यहां पर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो बेस वैल्यू विल बी जीरो हियर व्हेन दिस एंगल विल बिकम 90 डिग्री। ये एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा तो बेस वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब जैसे 0 डिग्री में हमने देखा था ना, ये परपेंडिकुलर दिखाई देगा केवल एक, तो ये वाला पॉइंट कहां पहुंच गया, ए पर, ये वाला पॉइंट दोनों म्यूचुअल हो गए, और सी वाला पॉइंट यहां पर पहुंच जाएगा। ये जो बेस चला आ रहा था इतना लंबा, वो बेस जीरो हो गया। अब ये ट्रायंगल का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हमें इमेजिन करना है इसको कि ये ऐसा एक बारीक सा ट्रायंगल है, ये इसका बेस धीरे 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 कम होके ये एंगल 90 डिग्री पर पहुंच गया। तो बेस वैल्यू, ये वाली वैल्यू जीरो हो गई, परपेंडिकुलर पूरा का पूरा ही है, परपेंडिकुलर की वैल्यू वही का वही है। तो यहां रह गया अब आपका परपेंडिकुलर, और बेस इज जीरो, क्योंकि दोनों कोइंसाइड हो गए, बी और ए वाले पॉइंट, ठीक है। तो बेस यहां पर जीरो है। जिन जिन फॉर्मूला में पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, जिनमें बेस आ रहा है वहां पर वो वैल्यू जीरो हो जाएगी, बेस की जगह पर जीरो हो जाएगी। तो मैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू लिख रहा हूं, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर पूरा का पूरा ही है, परपेंडिकुलर को एक्स ही माना है यहां पर, या परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कहां गया, हाइपोटेनियस भी उतना का उतना ही है। ये सारे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर सेम हो गए। देखो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, ये धीरे 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 क्या हो गए, एक ही जगह पर आ गए। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर सेम हो गए यहां,
हाइपोटेनियस भी उतना का उतना ही है, 1/1 हो गया, तो ये 1। इट मीन साइन 90 डिग्री 1 होता है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब आता है कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस इज 0, हाइपोटेनियस इज x, इट मीन्स 0। 0 upon x gives 0. Cos 90 degree value gives 0. Tan 90 degree perpendicular upon base. What is the value of perpendicular? Perpendicular gives x. And what is the value of base? Base here 0 in this case. For 90 degree case, base will be 0. It means this gives not defined value. Not defined value means infinity. This is the symbolic representation of infinity. This gives when cot 90 degree reciprocal of this 0 upon x gives 0. Yes, reciprocal of infinity will be 0. Reciprocal of infinity x upon 0 is 0 upon x. Sec. What is the reciprocal of 0? 0 means 0 upon 1. 0 का मतलब 0 upon 1 है, assumed है 1। लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपर साइड में ले जाते हैं और न्यूमरेटर को लोअर साइड में लाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 मीन्स इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड वैल्यू। तो sec gives not defined value. Sec 90 degree gives not defined. And what is the value of cosec? Cosec is the reciprocal of sine. Sine 90 degree 1/1 gives 1. This is your value of 90 degree. Cosec A gives 1. Thus these values are 45 degree and these values shows for 90 degree. Now we will going for some simplest method. What is the simplest method to maintain it in memory? मेमोरी में बनाए रखने के लिए हमारे पास कौन सा सिंपल मेथड है? तो मैं बता देता हूं इसका सिंपल मेथड। ये वैल्यूज भी मैं हटा देता हूं यहां से, ये अपने आप आती हैं। वैसे तो इसके कई टाइप हैं याद रखने के। देखिए ये इसको पेयर वर्क कर लेना आप। आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन को ध्यान रखना है। फर्स्ट लाइन क्या है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। Your standard is not so low, you can memorize this line. आप इस लाइन को आराम से अपनी मेमोरी में फीड कर सकते हैं, इतना भी आपका स्टैंडर्ड बिलो नहीं है। बिल्कुल सिंपल है। 5 वैल्यूज है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। दोबारा से 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर से 0 डिग्री की वैल्यू 0। फर्स्ट साइन की बात कर रहा हूं, आपको फर्स्ट में साइन ही रखना है, साइन की वैल्यू ही आपको याद रखनी है, बाकी उसके आधार पर सारी बन जाती हैं।
Sin 0 degree is 0. Sin 30 degree gives half, 1 upon 2. Sin 45 degree gives 1 upon under root 2. Sin 60 degree gives under root 3 upon 2. And sin 90 degree gives 1. Yes, again, sin 0 degree gives 0. Sin 30 degree gives 1 upon 2. Sin 45 degree gives 1 upon under root 2. Sin 60 degree gives under root 3 upon 2. And sin 90 degree gives 1. These 5 values. 5 के अलावा 6 नहीं है. कोस के लिए आपको क्या करना है, इसको उठा के उल्टा करना है. उल्टा का मतलब यहां 0, ये वाला जो 90 डिग्री की वैल्यू है यहां से उल्टा रखना शुरू करेंगे. ये फीड करेंगे यहां पर, ये वाली वैल्यू यहां फीड करेंगे. देखना दोबारा से, ये वाली वैल्यू उठा के यहां रखनी है, तो ये वाली वैल्यू यहां आएगी. तो अब किसका नंबर है, ये वाली वैल्यू गई यहां पर, ये वाली वैल्यू गई यहां पर, तो ये वाली वैल्यू यहीं रहेगी. तो ये वाली वैल्यू जाएगी यहां पर और ये वाली वैल्यू गई इधर. देखिए दोबारा से देख लेना, ये वाली वैल्यू गई यहां, ये वाली वैल्यू यहां, ये सेम हो गई. इसका मतलब साइन और कोस एक वैल्यू पर सेम होते हैं 45 डिग्री पर, और ये वैल्यू यहां गई और ये वाली यहां गई. इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू थी साइन 0 डिग्री की वो कोस 90 पर पहुंच गई, और हाईएस्ट वैल्यू यहां पर ये 1 थी इसकी, तो 1 गया इसमें, कोस 0 डिग्री पर इसकी हाईएस्ट वैल्यू हो गई, ये 1 यहां आ गया. ये आपस में इंटरचेंज हो गए सारे. इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, साइन 60 अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 उस साइड में था, तो अब ये कोस 30 पर आ चुका है. आप देखो अंडर रूट 3 अपॉन 2. साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन 2. साइन 30 गिव्स 1 अपॉन 2, और ये साइन 30 की वैल्यू कहां चली गई अब, कोस 60 पर, तो कोस 60 गिव्स 1 अपॉन 2. अब साइन 45 और कोस 45 1 अपॉन अंडर रूट 2 ही है. अब 0 डिग्री की बात कर लेते हैं. साइन 0 है, साइन 0 है, तो कोस 90 पे चला गया वो. अब देखो कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0. साइन 90 डिग्री 1 देता है, तो 1 कहां चला गया, फर्स्ट साइड में आ गया, इधर फर्स्ट कॉलम में आ गया, तो फर्स्ट में कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई. ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है. आप ये पूरा का पूरा यहां फीड कर सकते हैं इसको, दोनों लाइनों को. तो विद इन मेरे ख्याल से 15 सेकंड में कोस की वैल्यूज भी आप बता सकते हैं. विद इन 15 सेकंड में अगर आपको साइन की वैल्यूज की सिचुएशन पूरी पता है, 100% सिचुएशन पता है, तो कोस की वैल्यूज की सिचुएशन विद इन 15 to 20 सेकेंड्स में आप बता सकते हैं. इस पूरी टेबल को ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार ड्रॉ हो गई ये यहीं फीड हो जाएगी. यस, साइन 30 1 अपॉन 2, कोस 30 अंडर रूट 3 अपॉन 2, कोस 30. ठीक है. साइन 60 अंडर रूट 3 अपॉन 2, cos 60 1 upon 2, cos 61. Which value is same for both? 1 upon under root 2. Sin 45, cos 45. Sin 90 gives 1. Cos 0 gives 1. Sin 90 gives 1. Cos 0 gives 1. Sin 0 gives 0. And cos 90 gives 0. Cos 90 gives 0. ठीक है. अब देखिए tan की वैल्यू. tan के लिए क्या करते हैं, tan का जो फॉर्मूला है वो है साइन a अपॉन कोस ए. tan एक बड़ा टर्म है जिसमें साइन और कोस का आपस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंक्लूड है. ये फॉर्मूला होता है इसका, साइन ए अपॉन कोस ए. वैसे भी साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
और कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाता है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और कट के भी यही आया, यही तो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब टेबुलर फॉर्म में आप tan की वैल्यू इन दोनों से भी सिंपल है और फ्रीली आपको याद रखनी है। और 9th चैप्टर में tan की वैल्यूज ये वाली बहुत ज्यादा काम आती हैं, ये वाली और ये वाली 0 डिग्री और 90 डिग्री तो 9th चैप्टर में काम नहीं आएगा, इसी चैप्टर में 8th चैप्टर में ही काम आएंगी सारी वैल्यूज ये। बाकी 9th चैप्टर में 3 वैल्यूज बहुत ज्यादा काम आती हैं, इनको फ्रीली ही आपको याद रखना है। तो मैं आ रहा हूं tan के ऊपर। tan की वैल्यू के लिए क्या करना है आपको? ये आपस में न्यूमरेटर साइन रखना है और डिनोमिनेटर कोस रखना है। तो 0/1, यूं सोचिए ये अपॉन है तो 0/1 गिव्स 0। अब ये अपॉन करना है तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1/√3। देखिए ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो पूरी के पूरे नंबर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा? 1। ऊपर नीचे नंबर कटती है तो 1 ही तो बचता है। यहां 2 ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, पूरा न्यूमरेटर है ये। √3/2 पूरा न्यूमरेटर है और पूरा 1/2 डिनोमिनेटर है। ये डिवीजन लाइन है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। √3/1, √3/1 गिव्स √3। और ये 1/0 गिव्स नॉट डिफाइंड वैल्यू इंफिनिटी। देखिए आपको 3 वैल्यूज याद रखनी है, ये 9th चैप्टर के लिए यूजलेस है। 30 डिग्री के लिए 1/√3, 45 डिग्री बहुत सिंपल वैल्यू है, 1 ही आ जाता है। tan 45 डिग्री 1, और 60 डिग्री के लिए 1/√3 केवल फ्री है, उसके नीचे 1 है, अपॉन 2 वगैरह कुछ नहीं है। कोट की वैल्यू आपस में जैसे साइन की वैल्यू लिखी थी ऐसे कोट की वैल्यू आप लिख सकते हैं, यहां से रेसिप्रोकल कर करके लिख सकते हैं या वैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ इंफिनिटी यहाँ डाल दीजिए, √3 यहाँ डाल दीजिए, 1 यहाँ डाल दीजिए, 1/√3 यहाँ डाल दीजिए और 0 यहाँ डाल दीजिए। सेक की वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल है, सेक की वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल है। सेक तो 1/1 1, ये 2/√3, ये √2, ये 2/1 2, ये 0/1, ये वापस आपका इंफिनिटी हो जाएगा। कोसेक इसका रेसिप्रोकल है, ये 0/1 है तो ये 1/0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा और 2/√3 हो जाएगा और 1/1 1 हो जाएगा। या यहां से भी लिख सकते हैं आप, ये यहां गया, ये यहां गया, ये यहीं के यहीं रह गया, ये यहां ये यहां। दिस इज योर tabular form for 5 angles. Okay.